So, hi everyone. A very good evening. Hiteshi this side, the host for the day. Welcome to Guide IAS. Hope you all are doing great. So, guys, as you already know, today we have a session on the last month's strategy for PCS Punjab 2021. So, joining us today is a metallic personality whose soft heart, strong will, and perseverance has earned him 25th rank in Punjab PCS, consequently achieving the position of DSP in Punjab Police Services. So let's connect with DSP Varinder Singh Khosa. Hello, sir. A very good evening. Hello, good evening, everyone. So, welcome to Guide IAS, sir. Thank you so much. Thank you so much for joining with us. We all are happy to have you here. So, Thank you. तो सबसे पहले सर आपके जरिए आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी मेंबर, चाहे वो कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, एनीवन who is related to the Punjab Police Services directly or indirectly. So the ones who keep fighting day and night to keep us safe and happy at our homes. So thank you so much, Punjab Police, for always keeping us healthy, safe, and happy. Thank So you for the before we words move, of thank you for the words of appreciation. It's our duty, so we are more than obliged to. yes, so it's a pleasure. And before we move further, let me give a brief introduction about you. Shall I? Sure. Okay, so guys, Mr. Singh is a DSP in Punjab Police Services. He hails from a village in Moga. He has done his post-graduation from Punjab University, Chandigarh. He went for CAPF, that is Central Armed Police Forces, and got selected with 38th rank. But during that journey, he realized that he wanted to serve the nation and his state by directly getting involved with people. Therefore, he didn't join BSF and went for Punjab PCS, clearing it with 25th rank. Congratulations, sir. Thank you so much. Thank you. So now we'll begin with the questions. The Yeah, first sure. one, the first one. How did you decide of getting into civil services? Like क्या ये आपका बचपन का सपना था या फिर ग्रेजुएशन के बाद सडनली प्लान बना? How was it? Like I planned for the first time during my 11th or 12th class. हमने एक कॉलेज में प्ले किया था जिसमें मैं एज आर्मी का रोल किया था. तो फ्रॉम दैट टाइम आई फेल्ट इन लव विद द यूनिफॉर्म एंड मैं तब से ये मेरा सपना था कि आई वांट टू गो इनटू यूनिफॉर्म फोर्सेस ओनली. Okay, thank you, sir. The next one, sir, as it's a general tendency कि aspirants UPSC and state civil services simultaneously ही prepare करते हैं. But as you have tasted both, UPSC का भी टेस्ट किया आपने और स्टेट सिविल सर्विसेज का, सो आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंसेस रहते हैं? स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट रहती है या सेम ही रहती है? As far as UPSC and Punjab PCS is concerned, like I would say that 80% of the syllabus and exam pattern is very much same, right? And there is difference of only 20%, and that difference is in optional. Like for example, in UPSC there is optional subject, but in Punjab PCS there is no optional. Second thing, in UPSC जो prelims की merit जाती है उनमें CSET qualify होता है, बट इन पंजाब पीसीएस जो फाइनल मेरिट बनती है देन सीसेट और जीएस दोनों के मार्क्स काउंट होते हैं. सो देयर इज वेरी माइन्यूट डिफरेंस. आई वुड से दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी automatically you are preparing for state PCS as well, and that same was with me. I prepared for UPSC first. I gave 2 attempts but unfortunately couldn't make into it. So then I prepared for PCS and I got selected in my very first attempt. ओके सर. सर एज यू मेंशन कि सी सैट के बारे में क्या डिफरेंस है, सो वी नो कि यूपीएससी में वो क्वालिफाइंग है वेयर एज पीसीएस में स्कोरिंग है. तो वी वांट टू नो कि पीसीएस में सी सैट का क्या लेवल रहता है एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट. लाइक अभी 1 महीना रह गया तो कैसे करें? देयर इज इवन आई थिंक 1 मंथ से भी कम टाइम है. सो आई वुड से दैट आई होप एवरीवन इज प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर यूपीएससी. जो भी पंजाब पीसीएस के लिए 13th of Feb को एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आई होप ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, बिकॉज जब हम लास्ट मंथ में एंटर कर जाते हैं वी कैंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू
एंड आपने जो Yeah. पूरे साल में किया है वी हैव टू रिवाइज दैट ओनली, राइट? सो एज फार एज यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट सीसेट, सीसेट के लिए आपने कोई भी जो भी बुक फॉलो की हुई, बिकॉज आई विल नॉट सजेस्ट एनी न्यू सोर्स राइट नाउ, आई फॉलोड RS अग्रवाल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स. आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, देन यू विल नो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. और जब आप एग्जाम देखोगे आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ 9th और 10th लेवल, राइट? देयर इज अ वेरी सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, राइट? सो अगर आप कोई भी बुक फॉलो करोगे और प्रीवियस पेपर से देख लोगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देन यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट. पहले आप बुक में से चाहे देख के फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? सो आपको पहले अगर क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड, बिकॉज लाइक ड्यूरिंग आवर एग्जाम आल्सो काफी लोगों को एग्जाम पूरा आता था बट दे कुडंट कंप्लीट दैट इन टाइम. सो स्पीड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीसेट. आपको आपके पास 2 आवर्स होते हैं और आपके 80 क्वेश्चंस हैं. अगर आप 80 सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज सीसेट में यू कैंट अफोर्ड कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ दो, बिकॉज सीसेट ही पंजाब में मैं कहूंगा कि डिसाइडिंग पोर्शन है प्रीलिम्स का. अगर आपके सीसेट Yeah. अच्छे नहीं आते तो जीएस में आपको बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल स्कोर करना पड़ता है. सो इसलिए सीसेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, स्पेशली फॉर स्टेट पीसीएस लाइक पंजाब, वेयर मार्क्स आर काउंटेड इनटू द फाइनल मेरिट. Okay, thank you, sir. The next one, sir, like पंजाब सिविल सर्विसेज में पंजाबी लैंग्वेज के रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं. So how to cover that पंजाबी portion for this exam? सबसे पहले अगर आप प्रीलिम्स की बात करें, सो देयर आर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम पंजाबी, राइट? एंड 10 क्वेश्चंस मेक ह्यूज डिफरेंस. सो आप क्या, लाइक आई फॉलोड नरेंद्र दुग्गल बुक ऑफ 10th क्लास. उसमें लिटरेचर ग्रामर भी है और जो दूसरा पोर्शन होता है लाइक मुहावरे अखान, वो भी कवर किया हुआ है. आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा आप उस बुक को फॉलो करो. सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका बैकग्राउंड पंजाबी में इतना अच्छा नहीं है, यू कैन स्टार्ट रीडिंग पंजाबी न्यूज़पेपर 1 month बिफोर एग्जाम. उससे क्या होगा, आपकी वोकैब ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी. सो एंड यू कुड इजीली सॉल्व 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चंस. एंड जो बाकी 30 to 40% है, यू हैव टू फॉलो एनी गुड बुक लाइक नरेंद्र दुग्गल इज अ गुड बुक. उसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं एज फार एज पीसीएस इज कंसर्न्ड. Okay, thank you, sir. The next one, sir, this paper also involves Punjab GK, like पंजाब की history, geography, culture. So at times ये होता है कि ये काफी डेप्थ में भी होता है बट फैक्चुअल भी होता है, तो इसको एफिशिएंटली कैसे कवर करें? मतलब क्या लाइक डेप्थ में स्टडी करनी चाहिए पंजाब हिस्ट्री वगैरह की, या फैक्ट्स इनफ हैं? लाइक आई टोल्ड यू कि आई प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी. लाइक मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की हुई थी तो मेरा जीएस पहले कवर था. लेकिन जब मैंने स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करी तो एक पंजाब जीके का, जैसे आपने बोला कि एक पोर्शन आता है जो हम यूपीएससी में कवर नहीं करते. अनफॉर्चुनेटली जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें पंजाब रिलेटेड जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, राइट? बट आप रिस्क नहीं ले सकते, यू हैव टू कवर. देयर इज ए वन बुक साडा पंजाब. इन दैट बुक दे हैव कवर्ड हिस्ट्री, Punjab economy, geography of Punjab and art and culture of Punjab. That book is I think 200 से लेके 300 pages की होगी. Just simply cover that book and that book is more than enough because इतने questions पूछे नहीं आते. PCS भी like with each passing year उसका pattern UPSC की तरह हो रहा है. So there are very less factual questions and there more questions are UPSC type, like जहाँ पे आपको concept पूछा जाता है. So don't go for much facts. But you can't afford to even miss that. Like just cover from Sada Punjab. That's more than enough. Okay, sir, as we said earlier कि ये मेजर डिफरेंस रहता है कि पीसीएस में फैक्ट्स ज्यादा होते हैं while यूपीएससी में डेप्थ नॉलेज ज्यादा मैटर करती है. तो अभी लाइक 1 महीना रह गया है, तो देयर इज अ क्वेश्चन कि अभी इस टाइम फैक्ट्स कैसे रिवाइज करें, एंड इफ यू कैन सजेस्ट एनी बुकलेट आल्सो. Actually, what we did, हमने एग्जाम से 2 महीने पहले एक अपने नोट्स तैयार किए थे, राइट? आपको हर सब्जेक्ट का लाइक हिस्ट्री की डेट्स होती है, राइट? कौन सी मूवमेंट कब थी, कौन से नेम्स थे पर्टिकुलर मूवमेंट में. लाइक ज्योग्राफी क्वेश्चन हो जाते हैं कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, लाइक हो जाते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देयर हेडक्वार्टर्स,
लाइक जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कमेटीज बनती है, उनके हेड कौन थे, उनके मेंबर्स कौन थे, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते ही हैं, राइट। और इन क्वेश्चंस को थोड़ा फैक्चुअल होने के कारण अगर आप लास्ट 15 to 20 डेज में रिवाइज नहीं करते तो आपको रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट दैट कि आप एक दिन पूरा स्पेंड करो और सारी कमेटीज, सारे एग्रीमेंट्स आप गूगल पे सर्च कर लो। काफी इंस्टीट्यूट जैसे बायजूस हो गया, इनसाइट्स हो गया, इस बाबा हो गया, उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है सभी चीजों की। सो गो फॉर दोज लिस्ट और उन चीजों की एक लिस्ट बना लो अलग से, शॉर्ट नोट्स बना लो और एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवाइज करके उनको जरूर जाना प्रीलिम से पहले, राइट। दैट विल हेल्प यू कि यू कुड इजीली रिकॉल दोज थिंग्स इन एग्जाम। Okay, thank you, sir. The next one, sir, like we know कि state PCS में ना there are like questions ऐसे आते हैं जहाँ पे political theory या political thinkers से related होते हैं, तो उनकी depth में भी पूछा जाता है। But general tendency ये होती है कि aspirants उसको उतना नहीं cover कर पाते क्योंकि इसमें optional नहीं होता। So उनके लिए like इस short span of time में कैसे cover करें polity especially like thinkers वगैरह? यूपीएससी में आई थिंक 2010 तक पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस आते थे, बट आफ्टर दैट दे डिसकंटिन्यूड दैट, राइट। बट पीसीएस में अभी भी पॉलिटिकल थ्योरी के 4 to 5 क्वेश्चंस हर बार आ जाते हैं, राइट। और एक कई लोग की स्ट्रेटजी रहती है कि उनको स्किप कर दो, बट आई वुड से कि आप उनको स्किप ना करो। उसके लिए कोई भी 1 या 2 सोर्सेज कर लो, 1 सोर्सेज कर लो, क्योंकि अगर आप ज्यादा करोगे तो इनपुट ज्यादा होगा और आउटपुट नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी किसी ऑप्शनल की बुक करोगे दैट विल गो वेरी वाइड, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज यूपीएससी के 2010 तक के क्वेश्चंस उठाओ, उनमें जो भी पूछा गया है वो क्वेश्चंस कर लो। फिर पीसीएस के 2012 से लेके 2018 तक के सारे क्वेश्चंस उठाओ और जो भी उनमें क्वेश्चंस पॉलिटिकल थ्योरी के आएगी उनको उनको एक बार जस्ट पढ़ लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट होते हैं। थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू इज 1-2 इंस्टीट्यूट लाइक अभिमन्यु हो गया चंडीगढ़ बेस्ड, लाइक राज मल्होत्रा हो गया, उन्होंने एक बुकलेट आई थिंक 7 to 8 पेजेस की एक 2 बुकलेट्स निकाली हुई है। उनमें काफी थिंकर्स के जो उनके मेजर कोट्स हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनको लाइक दे हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल इन जस्ट 6 or 7 पेजेस। आई वुड सजेस्ट कि आप यू गो फॉर दोज, राइट। एंड आई हैव आल्सो अपलोडेड राज मल्होत्रा नोट्स ऑन ब्लॉग, आप वहां पे जाके भी डाउनलोड कर लेना। देयर आर आई थिंक 8 to 9 पेजेस, राइट। उनको एक बार रिवाइज कर लो और उनसे आपको क्वेश्चंस का एक बार आइडिया हो जाएगा एंड आपको लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। लाइक इट्स बेटर कि आप बिल्कुल छोड़ के जाओ, सो यू कैन आई थिंक कवर जस्ट फ्यू पेजेस, उनमें से आपको मे बी 4 to 5 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाए। Thank you, sir, for such an apt answer. It's surely going to help our aspirants. The next one, sir, PPSC में साइंस बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। जैसा आपका तो साइंस बैकग्राउंड था, बट लाइक मोस्टली पीपल डोंट हैव जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो इस पेपर के लिए साइंस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कवर करें? I think as far as science is concerned, having science background or not doesn't make any difference, because जो questions पूछे जाते हैं they are of 9th or 10th level, right? Basic questions, Okay. basic physics, basic chemistry, basic biology, right? So I will suggest कि first of all go for NCERTs, आप 9th और 10th की दोनों NCERTs पढ़ो, right? उनमें से आपको काफी मिल जाएगा। Then after that go for Lucent Science portion. Lucent Science portion में उन्होंने like under 3 divisions फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों चीजों को अच्छे से कवर किया हुआ है। जस्ट गो फॉर दोज, राइट। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें सॉल्व हो जाएंगे, राइट। एंड इट्स वेरी बेसिक साइंस, देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट दैट। ओके, थैंक यू सर। द नेक्स्ट वन, सर, मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? कैन यू प्लीज शेयर विद अस इन ब्रीफ? राइट, first of all I will suggest to all the candidates who are going for exam on 30th of Feb, now go totally in prelims mode, right? Mains interview सब कुछ भूल जाओ आप। Don't read any newspaper, don't go for editorials, don't go for any writing practice, like don't study anything for mains, because जो 1 month होता है एग्जाम से पहले, उसमें आपको प्रीलिम्स पे ही फोकस करना होता है। बिकॉज आपको यू नो वेरी वेल कि इस बार 40 to 45,000 पीपल अप्लाई कर रहे हैं। सो प्रीलिम्स में जितना कंपटीशन है यू कैन इग्नोर दैट। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तभी मेंस के लिए जा पाओगे। सो फोकस ओनली ऑन प्रीलिम्स राइट नाउ, राइट। रिवाइज होल सिलेबस, ज्वाइन एनी गुड टेस्ट सीरीज,
at least 10 to 15 question for GS, 10 to 15 test question papers for CSET. So totally focus on prelims right now. And as far as preparation for mains is concerned, I would suggest that जब आपका prelims हो गया, right, आपको idea हो जाएगा कि आपके expected marks कितने आ रहे हैं, so you will know कि you are in or out. After that, start writing practice for very first day. आप insightsonIndia.com पे daily they are posting 9 to 10 questions. आप रोज 1-2 questions लिखो, right? Second thing, you can join any mains test series because आपने जो मेंस का सिलेबस है, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस 80 to 90% सेम है, मतलब आपने सिलेबस कवर किया हुआ है, राइट? सो बट नीड्स की आपको जो नॉलेज आपकी है, इफ यू आर एबल टू इंटरप्रेट दैट इन आंसर्स, राइट? सो राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दो एंड आफ्टर दैट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि पिछले एक साल टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन आ जाता है, आ सकते हैं, लाइक किसान मूवमेंट, लाइक 370 आर्टिकल एब्रोगेशन, राइट? एंड ऐसे टॉपिक्स ढूंढो, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, राइट? देन प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स ऑन दोज टॉपिक्स. आप उन टॉपिक्स पे प्रोज कॉन्स, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, उनका पास्ट, उसका प्रेजेंट, फ्यूचर क्या हो सकता है, राइट? सो प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स. Those short notes will help you in writing a very good answer in mains. Okay, thank you, sir. The next one, sir, थोड़ा different question है, इससे थोड़ा कम related है, but as we know कि अभी नायब तहसीलदार की पोस्ट आउट है और जहां तक कि हमें पता है कि इसका सिलेबस काफी मैच करता है पीसीएस से, तो जो लोग इस बार नायब तहसीलदार दे रहे हैं उनके लिए आप कोई स्पेशल टिप्स या ट्रिक्स बताना चाहेंगे? I think it's great opportunity even for those who are preparing in PCS and नायब तहसीलदार भी I think जल्दी एग्जाम ले लेंगे, राइट? अगर आप PCS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी नायब तहसीलदार के लिए अपने आप अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. आई थिंक नायब तहसीलदार में एक तो है जीके, वन रीजनिंग है एंड आई थिंक नथिंग एल्स, राइट? डू यू नो द सिलेबस ऑफ नायब तहसीलदार? So I'm not very well aware actually. All right. I think Because only it's like some related to PCS only. The major portion is the same. I think there is a GS portion है एक और एक रीजनिंग है and there is a no written mains. I think subjective exam नहीं है इसमें कोई, ना ही कोई इंटरव्यू है. There is only one Means there is नहीं है only one इसमें. objective, हाँ जी. right? There is only one objective paper. Yeah. So अगर आप नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन कर रहे हो तो I would say कि PCS से थोड़ा सा ज्यादा फैक्चुअल हो जाए उसके लिए, क्योंकि उसमें थोड़े फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, right? And focus more on Punjab because it's a state level exam. So पंजाब के करंट अफेयर्स करो, पंजाब का बजट, पंजाब का इकोनॉमिक सर्वे, पंजाब के रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लो, राइट? पंजाब के फैक्चुअल फैक्ट्स भी उसमें जरूरी है एंड ओवरऑल जो आप पीसीएस के लिए जीएस कर रहे हो वो तो है ही है. एंड सेकंड थिंग, रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है कि इसमें आप मैक्सिमम लाइक अगर 40 मार्क्स का है तो 40 में से 40 भी स्कोर कर सकते हो और आपको अगर नहीं आती तो 15 से 20 मार्क्स भी रह जाएंगे, राइट? लाइक जीएस ऐसा है कि उसमें आप ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते. तो रीजनिंग को अच्छी तरीके से करो. रीजनिंग को ऐसे लेके चलो कि यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज वंस अगर आपको मेथड आता है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो कैसा भी क्वेश्चन आए यू कैन इजीली सॉल्व, अनलाइक जीएस. सो फोकस मोर ऑन रीजनिंग. I think reasoning must be 100% correct. Thank you, sir. The next one is from our audience कि पंजाब न्यूज या करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पंजाब उनको कवर करने के लिए इज द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस इनफ या कोई और लोकल न्यूज़पेपर भी पढ़े? अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे, सॉरी, आपने कोई भी करंट अफेयर्स किए होंगे लाइक विजन और आइदर आपने किया होगा इनसाइट्स जहां जीके टुडे, राइट, जहां आप कोई भी न्यूज़पेपर कर रहे हो, लेकिन उससे आपको पंजाब एंड आई वुड सजेस्ट कि एक पंजाब रिव्यू नाम की बुक आती है साडा पंजाब की तरफ से, राइट? यू कैन फॉलो दैट. सेकेंड, व्हाट यू कैन डू कि अगर आप थोड़ा अगर 1-2 मंथ होते, यू कैन स्टार्ट रीडिंग ट्रिब्यून, दैट्स वेरी गुड सोर्स. और थर्ड, यू कैन गो फॉर अभिमन्यु नोट्स. लाइक हमारे टाइम 2018 में उन्होंने एग्जाम से पहले एक नोट्स रिलीज किए थे. उन्होंने पंजाब की मेजर स्कीम्स, कोई भी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, उनकी समरी, ये सब चीजें उन्होंने सॉल्व कर दी थी. सो आई हैव सजेस्टेड यू 3 ऑप्शंस. आप इनमें से कोई भी एक फॉलो कर लो, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर पंजाब करंट अफेयर्स.
ओके सर, एज यू सेड अबाउट कि पंजाब का इकोनॉमिक सर्वे, तो इस पेपर के लिए इज दैट इम्पोर्टेंट इनफ, एंड अगर है तो अभी लाइक एक महीने में उसको कैसे कवर करें, बजट एंड पंजाब इकोनॉमिक सर्वे? I would say don't go for whole budget or survey. Just go for summary, because economic survey में government की schemes और government के different sector के prospects वो अच्छी तरीके से कवर होते हैं, and हमारे एग्जाम में 2 or 3 questions economic survey से थे भी. So go for summary of these budget and survey, right? And don't waste time on whole survey or budget. Just go for the summary. ओके सर. सर वैसे तो आपने बता दिया है कि एक महीना रह गया तो उसमें क्या फोकस होना चाहिए, तो दैट इज स्पेशली प्रीलिम्स. बट वी वांट टू नो कि लाइक प्रीलिम्स के लिए भी क्या चीजें अभी पढ़नी चाहिए जिन पे फोकस होना ही चाहिए टाइम बेनिफिट के लिए, एंड क्या चीजें हैं कि जिनको छोड़ के भी चलेगा अभी क्योंकि एक महीना ही रह गया है. Right, I have when you told me that you're going for live, so Yes. so I have gathered 7 to 8 points. Like you have less Okay. than 30 days, right? So I would Yes. suggest what you must do and what you should not do, right? First of all, go for revision. Don't go for any new book or material right now, right? What you have done throughout the year, just revise those books or your notes. Don't go for anything new. Second, if you have not done any test series till now, right? Go for any test series. Um I think 10 to 12 tests of GS and 10 to 15 of CSAT are more than enough. So टेस्ट सीरीज का क्या फायदा होगा कि you would know how to go how to solve the questions in a limited time, right? Time limit is always problem in prelims exam, so it's very crucial to go for test series right now. Third, as I've told earlier, make a list of important topics like international organization, their headquarters, committees, national park, wildlife sanctuaries, जिनमें से अभी एक दो क्वेश्चंस आते हैं, उनकी लिस्ट अभी तैयार करो और एग्जाम से 2-3 दिन पहले उसको रिवाइज करना, ठीक है? एंड वन थिंग मोर, डोंट गो आउट ऑफ सोशल मीडिया राइट नाउ. Don't waste even single minute on anything else other than studies, right? Ignore newspaper right now. Don't go for editorials. Don't waste your time in newspaper because exam बन चुका है इस टाइम, ऐसे लेके चलो. न्यू करंट अफेयर्स आर ऑफ नो यूज राइट नाउ, सो कवर करंट अफेयर्स यू आर कवर्ड अंटिल नाउ, राइट? एंड समथिंग रिवाइज करंट अफेयर्स. हमारे टाइम करंट अफेयर्स के इतने क्वेश्चन नहीं आए, बट वी कैंट से. So current affair, don't ignore them. And something few do which you should not do when you're doing a test series. Don't worry about results. अगर आपके टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स नहीं भी आते, डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स बिकॉज यू डोंट नो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए. मे बी यू कुड डू वेल एट दैट टाइम, सो डोंट पैनिक राइट नाउ. एंड वन थिंग मोर, take good sleep right now, right? Go for exercise. Regular exercise is very important right now. अगर आप exercise करोगे, you could feel fresh, you can study for longer hours. And anything else you would like to ask? Yes, sir. Thank you, sir, for such a beautiful answer. Next is the question from our students of Punjab University, especially कि आप कितना टाइम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे? Punjab library proved to be a like a god for me. I came in Punjab University in 2016 only, right? And I prepared there till 2019 when I finally got selected. Before 2016 मैंने एक साल preparation की थी, but I couldn't give much time because like I was at home, so ऐसा ambience ही नहीं मिलता था कि I could study for longer hours. But when I came into Punjab University, you know कि लाइब्रेरी यहाँ पे कितनी अच्छी है, एम्बियंस अच्छा है. एंड आई वुड से कि हम जैसे स्टडी करने लग जाते थे, you don't need to go out of the boundary of Punjab University. You have everything at your disposal. You have lunch at your place, you have books, you have notes, you have good hostel facility, you have Wi-Fi, you have good library. So that played a major role in my success. And I joined their anthropology, but I couldn't complete that because after first year I got selected into PCS. So Punjab library mein we used to study from morning 9 o'clock to 11 at night, right? So there were breaks hoti thi. First of all, अब breakfast करके आते थे at 9.
then lunch break, evening tea break at Stussy, then dinner break, right? So I think Punjab University Yes. Library played a major role in my success. So yeah, that's an inspiration, sir. And Punjab University rocks in that case. Absolutely. Uh, so the next one, sir, we want to know your interview experience. Like कि state में कितना difference होता है, क्या questions रहते हैं, and if you can share one or two of your questions you were asked, so Right. we would be happy. Like I went for a UPSC interview for CAPF in 2017. Then I went for PCS interview at PPSC in 2019. Right. So I felt that there is no major difference in interview. In interview, your knowledge is not important because they have already tested your knowledge in written examinations, right? What matters more is your confidence, your way of expression, your personality, that वो आपको कोई responsibility दे रहे हैं as a like DSP or IS or in assistant commandant in CAPF. They want to make sure कि आप उस responsibility को कर सकते हो या नहीं. So there are most of the in both interviews there were practical questions, right? For example, I was asked a question कि अगर आप किसी सब डिवीजन में DSP हो and आपके एक पुलिस स्टेशन में कस्टोडियल डेथ हो जाती है, right? So आप किस तरीके से एक्शन लेंगे SHO पर? आप SHO को सस्पेंड करोगे या आप ऐसा मतलब उसको बचाने की कोशिश करोगे? So that was a very practical questions. It was nothing to do with any book or any factual knowledge. So in interview, most of the times, your personality, your background, your expression, your practical knowledge is checked. And I think interview is the easiest part of this exam because interview के लिए आप prepare करते हो लेकिन आप prepare कर भी नहीं सकते because जो आपका natural self है वो अपने आप खुद बाहर आ जाएगा. And that is very important in exam. In interview. Okay, thank you, sir. So with this, we come to an end of the session. Sir, any special message you would like to give our viewers? I would like to say कि I hope you are preparing very well and just before exam, take care. Don't be panic at the last moment. अपने food, अपने travel, अपनी stay का पहले से ही plan करके जाओ. जो आपका सेंटर बनेगा आप एक दिन पहले जाके सेंटर देखो where your exam is going to be held and last thing be confident, prepare everything, revise everything in last 4 or 5 days. Try to revise whole syllabus because जो आप एग्जाम से 5-7 दिन पहले करते हो you can very easily recall those things in exam, right? And at last I would like to say all the best to all the aspirants. Hope you will come out with flying colors. Thank you. Thank you, sir. So thank you so much for gracing this evening with your presence. Your lovely ideas, lively experiences and calculative approach will help aspirants to crack PCS Punjab this time, that is 2021. So yeah, thank you, sir. We're also grateful to our audience for joining us. Thank you so much. Goodbye. Okay. Thank you. Thank you.